हमारे इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन तो बोलो एक्सप्लेन तो बोलो पहले लगाते ही हूँ चार्जर कुछ है हेलो गुड इवनिंग एवरीवन in today's class we are going to discuss permutation and combination. So I think you have basic idea about permutation and combination. So what do you mean by these two words? First word is permutation and second word is combination. What is the literal meaning of these two words? Before starting this topic, I would like to know what is the basic meaning of this word permutation and this word combination. Is there anyone knowing these two words? First word is permutation, second word is combination. Because this whole topic we are going to study two things. First is permutation, that means arrangement, and second is combination, that means selection. Okay. So in this topic, permutations and combinations. So if you look into literal meaning of permutations, so that means arrangement. Of things or some objects, things, numbers, whatever you would like to consider, the literal meaning is basically arrangement. Here we are going to arrange things, okay, in permutation. You have come across the problem like if you have given some digit, you have to make a number. So how many possible number are there? So if you sometimes you might be surprised how a telephone company make different number. So this is the strategy of arrangement. So basic concept of permutation that is used in constructing different number using same set of digits. We have same set of digits, that is 1 to 9 and 0, 10 digits. So if we arrange all these numbers, so how can we generate different varieties of numbers? So all those kind of things we are going to cover in permutation. And if we discuss about combination, so what is the literal meaning of combination? So literal meaning of combination is selection. Okay. So what do you mean by selections? So here we are looking at number of ways of selecting something. Okay. So you might have come across the problem like you have to select one
chairperson in a committee, or this is basically some kind of election or selection process. Like you have to select one monitor in your class, kind of things. Okay, you have to make a committee out of 10%. Committee contain 3%. Sometimes some condition is given, like for example, कि हमें एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर मान लो 3% हो, या फिर हमें टीम बनानी है, टीम ऑफ 3% या 5%, ओके, आउट ऑफ 15% प्लेयर्स, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास जो भी सिलेक्शंस की प्रॉब्लम होगी वो इसके अंदर दी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक permutation and combination, so first we have some fundamental things. So first fundamental thing is fundamental principle of counting. So counting तो आप सबने सीखी होगी, like 1 2 3 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं उस काउंटिंग को करने के, वो लर्न करने वाले। हम उसी काउंटिंग को एक डिफरेंट अप्रोच से यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच? ओके, सो बेसिकली we have two principles for fundamental of counting. So first is addition principle. This is basically PL. And second is basically multiplication principle. ये जो बेसिक हमारे पास दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनकी हेल्प से हम सारी काउंटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इससे क्या मतलब है, चलो मैं इन दोनों चीजों को आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली वर्ड का यूज होगा डेट इज और, आई मीन समथिंग ऑप्शन इज गिवन टू अस, ओके। सो लेट अस सपोज कि यहाँ पे मेरे पास कोई सिटी ए है और यहाँ पे कोई सिटी बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको यहाँ ए से बी जाना है, ठीक है, आपके पास मान लो 3 बस है, ओके, 4 ट्रेन है और मान लो 2 फ्लाइट है, ठीक है। तो आप कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, तो आप में से कोई बता सकता है कि हमें सिटी ए से सिटी बी अगर ट्रेवल करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा इस स्टेशन? देखो हमारा टास्क है बेसिकली हमें ए से बी जाना है, ओके। तो हम क्या कितने तरीके से जा सकते हैं? तो माय क्वेश्चन इज दैट हियर नंबर ऑफ वेज of traveling from A to B, ये हमारा टास्क है कि हमें सिटी ए से सिटी बी तक ट्रेवल करना है। तो बताओ, देखो अगर मैं पूछूं हमारा काम कंप्लीट होने के कितने तरीके, अगर बस से ट्रेवल किया जाए फर्स्ट तरीका, तो बस से हम कितने तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं? 3 बस है तो हम 3 तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, तो हमारा काम हो गया। और कितने अलग हैं, इसका मतलब हम ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेन से ट्रेवल करने के यहाँ पे 4 तरीके हैं। इफ वी टेक फ्लाइट देन वी हैव 2 more, so we can add, so these are the total ways,
Okay, so how many ways? So we have 7 plus 2. So basically we have 9 as a total ways to travel from A to B. तो यहाँ पे एक बेसिक सी बात समझ में आई, हम एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे परफॉर्म करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो उस टास्क को करने के टोटल वेज कितने? अगर हम बात करें सेकंड में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल? यहाँ पे देखो, इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास सिटी ए था, यहाँ पे सिटी बी है और यहाँ पे सिटी सी। किसी एक पर्सन को सिटी ए से बी जाने के मान लो 2 रास्ते हैं। मान लो ये रास्ता ए है, ये रास्ता है। तो बी से सी जाने के मान लो 3 रास्ते। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज डिफरेंट दिस टाइम। प्रॉब्लम क्या है, हमें ए से सी जाना है बट बी से हमें से होके जाना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली जाना, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम A to C via B, हमें B से होके जाना है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट टास्क है A to C जाने का, हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा A से B जाना एंड सेकंड पार्ट जो होगा B से C जाना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ A से B जाने की कितने वेज है, नंबर ऑफ वेज, तो सिंपली हमारे पास 2 वेज है यहाँ पे A से B जाने की, दैट इज 2 वेज। और यहाँ पे B से C जाने के हमारे पास कितने वेज होंगे, 3 वेज। तो अगर मैं इस टास्क में अगर आपसे बात करता हूँ तो पहला टास्क हुआ A से B जाना, दूसरा टास्क हुआ B से C जाना। तो जब हम इन दोनों टास्क को परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1, तभी जाके हमारा जो कंप्लीट टास्क है वो खत्म होगा A टू C जाने का। तो अगर मैं बोलूँ जो पहला टास्क था दैट इज A टू B जाने वाला, वो 2 तरीके से किया जा सकता है। और जो सेकंड टास्क है, एंड वर्ड का यूज आएगा यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम दोनों टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक साथ 1 बाय 1, तो हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट जो टास्क है A टू C जाने वाला, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दैट मीन इसको हम बोल सकते हैं 3 वेज। तो यहाँ पे जो टोटल वेज होंगे दैट मीन 6 वेज होंगे, दैट मीन 2 into 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो हम बोल सकते हैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट A टू B एंड सेकेंड B टू C। यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के लिए, एंड वर्ड का यूज होगा जब हम इस स्टेटमेंट को रीड करने की कोशिश करें। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल है जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब अगर मैं आपको इनको डिफाइन करने को बोलूं कि एडिशन प्रिंसिपल को आप डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करो? Basically, we have a task which can be performed in m days, n days, and n days. Okay, so total number of ways to perform that task is m plus n plus n. So अगर हम अब डेफिनेशन पॉइंट से लिखना चाहें तो एडिशन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन होगी for a task we have m, n, and r different ways.
So total number of ways to perform that task is m plus n plus r ways. This is basically addition principle. So if we talk about multiplication principle, let task A can be performed in m different ways and task B can be performed in n different ways. So total number of ways to perform two tasks in succession is m cross n. Hello Aryaman. Yes sir. तो हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आपने पढ़ा होगा पहले भी. यस सर. तो हम डिस्कस कर रहे थे दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो आपको पता है क्या होता है? देखो, जो काउंटिंग करने के एडवांस तरीके हैं उन्हें हम उसी चीज को हम बोलते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. तो उस तरीके में जो सबसे पहले फंडामेंटल तरीके आते हैं वो आता है एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक टास्क है उसे करने के मान लो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मान लो m तरीका और n तरीका, दो अलग अलग तरीके, तो और एक r तरीका है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म दैट टास्क इज m प्लस n प्लस r. ठीक है, इसको थोड़ा एक एग्जांपल की हेल्प से समझो कि मान लो आपको सिटी A से सिटी B जाना है. ठीक है, तो अगर A से B जाने के लिए 3 बस जाती है मान लो. ठीक है, A से B जाने के लिए 4 ट्रेन जाती है, A से B जाने के लिए 2 फ्लाइट जाती है. तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज A से B ट्रेवल करने के कितने होंगे? तो सर 3 + 4 + 2. हाँ, यहाँ पे क्या है देखो, अगर मैं बस से ट्रेवल करूं तो भी मेरा टास्क परफॉर्म हो गया. ठीक है, अगर मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूं तो भी मेरा टास्क परफॉर्म हो गया. तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है. जब मेरे पास ऑप्शंस होते हैं किसी टास्क को करने के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे, और उनमें से मैं किसी एक तरीके से करता हूँ तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहां पे एडिशन का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये बात समझ में आई? यस. ठीक है, अभी मान लो इसी प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ाते हैं कि पहले A से B जाने के 2 रास्ते हैं, फिर B से C जाने के 3 रास्ते. ठीक है, अब हमें जाना कहाँ है? डायरेक्टली A से C जाना है, बट B से होके जाना है हमेशा. ऐसा नहीं है कोई डायरेक्ट रास्ता जाता है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज A to C ट्रेवल करने के कितने होंगे? अब देखो इस चीज में क्या हो रहा है कि जो हमारा टास्क है वो जाना है A से C, बट ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब इसके सब टास्क पहले A से B जाना कंप्लीट होगा और फिर B से C जाना. ठीक है, पहले वाले प्रिंसिपल के जैसा नहीं है कि अगर मैं बस से चला गया तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टास्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों को हम एक के बाद एक परफॉर्म करेंगे. तो इसमें क्या हुआ, पहले को परफॉर्म करने के 2 वेज थे,
दूसरे को परफॉर्म करने के 3 वेज। तो इस एक टास्क जो हमारा था कंप्लीट, वो क्या था, ए से सी जाने का, उसका टोटल वेज कितने हो गए, 6 वेज। तो ये बोलता है हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये दोनों प्रिंसिपल है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो, उसके बाद आता है बेसिक जो हम चीज यूज करेंगे परम्यूटेशंस के अंदर। वो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर अरेंजमेंट करेंगे। परम्यूटेशंस का लेटरल मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट करना किन्हीं भी चीजों का। ठीक है, उन्हें अरेंज करना। तो अगर मैं पूछूं, अगर हमारे पास n चीजें हैं, n डिफरेंट थिंग्स है, मान लो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है, उन सबको एक साथ लेके अरेंज करना है, तो टोटल वेज कितने होते हैं? सर कुड यू रिपीट? हमारे पास n डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल? सर n फैक्टोरियल। हाँ, जब हमारे पास टोटल n है और हम उन n को एक साथ लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल। ओके, सो पहला जो परम्यूटेशंस का रूल है वो यही है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different things taken all at a time is n फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर इस n में से हम कोई r को लेके परम्यूटेशंस करें तो क्या होगा, टोटल चीजें n थी, अगर उनमें से हम r को सेलेक्ट करें और उन r को अरेंज करें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ, तो बेसिकली हम उसे क्या लिखते थे, npr लिखते थे। यस। ठीक है, तो npr है क्या बेसिकली, पहले हम क्या करेंगे, n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन r चीजों को अरेंज कर देंगे r प्लेस पे r फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू npr। यही एक npr। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ permutations of n different things taken r at a time। ठीक है, that is npr। तो ये दोनों बेसिक चीजें क्लियर है आपको, टोटल जब एक साथ लेना हो सबको, और जब उनमें से हमें कोई r ऑब्जेक्ट्स लेना। Yes. इन दोनों, अब अगर मान लो ये तो सब डिफरेंट थे, अगर इनमें कुछ रिपीट हो गया तो क्या करेंगे? अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, जो थर्ड प्रिंसिपल है वो बोलता है कि अगर कोई चीजें रिपीट हो गई, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास n चीजें हैं, इन n में से p एक जैसी है, q p से डिफरेंट है बट वो भी एक जैसी है। ठीक है, और मान लो r जो है इन दोनों से डिफरेंट है, वो भी एक जैसी है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे इस केस में? टोटल ये है n, जब चीजें रिपीट हो। एक साथ कितने ले रहे हैं? क्या सर एक साथ कितने ले रहे हैं, मतलब सब n लेने हैं टोटल? तो सर n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू हाँ, q फैक्टोरियल। हाँ, जिनका रिपीटेशन होगा उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये एक बेसिक, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम परम्यूटेशंस में यूज करेंगे। ठीक है,
Yes. चलो, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लो हमारे पास हमें तो कुछ डिजिट दिए हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये डिजिट्स। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है। तो हमें ये बताना है पहले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने होंगे अगर ये डिजिट का यूज करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है? Yes. हमें ये डिजिट दी हुई है 1 to 6, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। Sir, 6 factorial upon 2 factorial. 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों? Sir, n factorial upon n minus r factorial होता है ना। अब देखो, तो 64 सबसे ले। जब भी नंबर बनाने वाला क्वेश्चन हो तो उसे हमेशा प्लेस वाले तरीके से करो। कितने प्लेस है हमारे पास? 4 प्लेस है जब 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। Yes. तो अब ये बताओ, इसमें जीरो तो है ही नहीं और कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर पूछा है, ठीक है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? Sir, 6 हो गया। इस प्लेस को फिल करने के 6 तरीके हैं। और सेकंड प्लेस को 6 हो गया। कितना हो गया? 6. 6, बिकॉज हमें रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, हमसे जब टोटल पूछा है तो हम टोटल मतलब जितना पॉसिबल है मैक्सिमम वो बताएंगे ना। तो इस प्लेस को फिल करने के भी 6 तरीके हो गए, ठीक है। और इसको भी फिल करने के 6, तो टोटल कितना हो गया? 6 to the power 4। समझ में आई बात? ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसी चीज को हम दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड था। अगर मैं दूसरा केस कंसीडर करना चाहूं, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है नॉट अलाउड, और यहाँ पे क्या था, रिपीटेशन जो था अलाउड था, ठीक है। इसका तो यहाँ पे कितना बनेगा? अब टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे अगर हम बोले कि अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं हो सकता? फिर से वही तरीका यूज करो भाई, हमारे पास 4 प्लेस है, ठीक है। तो ये बताओ फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? इस प्लेस को फिल करने के So 360. पहले प्लेस को फिल करने के तरीके बताओ बस। Sir, 6. 6 और सेकंड को So 5. 5, बिकॉज वो डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। फिर 4 और फिर 3, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा दैट मींस वी कैन से ये हो गया 6 into 5 into 4 into 3, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 30 और यहाँ पे हो गया 12, तो 360 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। समझ में आई बात, दोनों में क्या डिफरेंस? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर या 4 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। तो अब इनमें इवन कितने होंगे?
अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? सर वंस डिजिट पे 2, 4 और 6 ही आ सकता है। तो देखो हमारे पास 4 डिजिट है, तो ये वाला जो नंबर है इस पे हम क्या क्या फिल कर सकते हैं? भाई हमारे पास जो गिवन डिजिट थी वो थी 1, 2, 4, 5 एंड 6, ये 6 डिजिट गिवन थी। बट जो इवन डिजिट है वो हमारे पास 3 ही है, तो इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज होंगे। यस। अब रिपीटेशन अलाउड लेके चलेंगे हम टोटल में, हाँ यस। तो बाकी प्लेस को फिल करने के कितने तरीके बचे? तो ये हो गया 216 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये टोटल नंबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम रिपीटेशन को अलाउड लेते हैं। समझ में आ रहा है इसे? यस। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन इसमें बोले, ठीक है, कि वो नंबर कितने होंगे जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, जिसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो, टोटल इवन नंबर। तो सर 4 डिजिट या 6 डिजिट? वही 4 डिजिट, इसी के अंदर फोर्थ क्वेश्चन सर हम क्रिएट कर रहे हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, टोटल नंबर ऑफ सर 180। 180 कैसे? तो सर पहले तो 3 ही डिजिट आ सकते हैं वहां पे वंस पे। अब देखो हमारे पास 4 प्लेस थे, तो यहाँ तो हमारे पास फिक्स है 3 डिजिट आएंगे। यस। अब ले लेंगे उसमें से तो फिर 5 बच जाएंगे। यहाँ पे हम 5 फिल कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन नहीं करना, तो यहाँ पे कोई एक फिल हुआ होगा तो वो नहीं रिपीट करना। अब यहाँ पे कितना बचा? सर 4, 4, और यहाँ पे 3। 3, तो बेसिकली कितना हो गया? 20 इंटू 9, तो 180। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? यस। चलो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि मान लो हमारे पास सारे डिजिट गिवन है 0 to 9, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। इस केस में टोटल 5 डिजिट नंबर कितने होंगे? सर 10 to the power 5। 10 to the power 5 क्यों होगा? सर क्योंकि ये नहीं लिखा कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, तो रेपिटेशन अलाउड होगी। रिपीटेशन तो अलाउड होगा, बट 0 आ रहा है, अगर पहले प्लेस पे 0 फिल कर दोगे तो वो नंबर 4 डिजिट काउंट होगा। हाँ यस सर। तो ये प्रॉब्लम आ गई अब 0 आने से, तो इसका क्या करें अब? तो वहाँ एक हटा दो, 9 ही आ सकते हैं फिर। हाँ, तो अब हमें जब भी 0 इंक्लूड होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। इस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो यहाँ पे हमें इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने मिले? 9। 9। और यहाँ पे हम कितना फिल कर सकते हैं? 10, 10, 10, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 9000। समझ में आया पहला क्वेश्चन? यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में सेकेंड क्वेश्चन की। When repetition is not allowed, बताओ अब कितना होगा?
अब क्या चेंज आएगा? सर 99876 हो जाएगा ना हर हाँ। डिजिट। अब देखो 5 प्लेस है हमारे पास, ठीक है, मैंने ये 4 डिजिट नंबर बना दिया तो एक और 0 आ गया, ठीक है, 5 प्लेस लेने थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला प्लेस 9 से फिल होगा, अब दूसरा प्लेस भी 9 से फिल होगा, क्यों? क्योंकि एक डिजिट हम यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे कितना होगा, 8, 7 और 6, जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन 9, 9, 8, 7, 6, ये जो भी नंबर आएगा ये टोटल पॉसिबल नंबर, ठीक है। यस सर। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट मोबाइल नंबर, तो कितने होंगे? तो आंसर क्या होगा? सर 10 to the power 6। 10 to the power 6, क्यों? क्योंकि सर कोई भी डिजिट कहीं भी आ सकता है, रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए, आपको मोबाइल नंबर फॉर्म करना है या गाड़ी का प्लेट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है, तो वहां पे हम रिपीटेशन को अलाउड लेके चलेंगे। सेकेंड थिंग, हम ये मान सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, वो एक डिजिट काउंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 10, तो एवरी प्लेस में हमारे पास 10 पॉसिबिलिटी है, तो हम बोल सकते हैं 10 टू द पावर 6, ठीक है। यस। अब अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर which are divisible by 5, तो कितने नंबर? सर 18,000। अब हमारे पास क्या कंडीशन आई कि हमारे पास 5 प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या कंडीशन इंपोज किया हमने कि वो सर डिविजिबल बाय 0 या 5, 5। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए? 2 वे हो गए, यस। ठीक है। अब रिपीटेशन को हम अलाउड लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना वेज होगा? सर 9 होगा वहां पे क्योंकि 0 नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे 0 1.5। नहीं आएगा, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन आया है, ठीक है, बाकी जगह 10 आ सकता है, तो टोटल कितना हो गया? 9 टू द 18 और ये हो गया 1000, 18,000, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नंबर से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास अल्फाबेट सीरीज से, जैसे सपोज करो अगर मैं पूछूं कि मेरे पास आर्यमान जो वर्ड है, इसके टोटल पॉसिबल वर्ड कितने बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, हमें मीनिंग पे नहीं जाना है। सो टोटल वर्ड कितने फॉर्म कर सकते हो? सर y के बीच में भी एक ही आता है। क्या? y के बीच में भी एक ए आता है। या अच्छा, यस। चलो, ऑल लेटर एट ए टाइम।
हमें सारे लेटर को एक साथ यूज करना है। तो टोटल वर्ड्स कितने हो सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? तो सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ, बिकॉज देखो अगर टोटल काउंट करें तो कितना है, ARYAMAN, तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया, सब एक साथ लेना है। अब रिपीटेशन किन किन का हुआ? एक तो ए का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, कितने टाइम्स हुआ है ए का रिपीटेशन? 3 टाइम्स भाई, 1 2 3, तो डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी किसी और का रिपीटेशन हुआ है? नो सर। तो ये हमारे पास टोटल वर्ड्स हो गए जो हम इससे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यस। चलो, अब इसमें और भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं कि मेरे पास कोई एक वर्ड है, लेट्स सपोज इंडिया, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या होगी अगर हम इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड? ये भी एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, तो इसका रैंक निकालना आता है? यस सर। तो कैसे निकालते हैं? सर पहले वो अल्फाबेटिकली पहले वाले वर्ड को वो कर देते हैं। हाँ, देखो सबसे पहले हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी? पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा? डी आएगा, फिर आई, और फिर एन। यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो जब हम पहले ए से स्टार्ट करेंगे वर्ड, तो ए तो यहाँ पे फिक्स हो गया, बाकी हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो ये जो 5 प्लेस है, इन पे जो रिपीट होगा, कौन रिपीट होंगे? आई रिपीट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। यस। बिकॉज ए हट गया क्योंकि ए फिक्स था, बाकी बचे 4 में से आई रिपीट हो रहा था, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। सर 12 है। या उसके बाद किसका नंबर आएगा? डी का नंबर आएगा, ठीक है। तो डी का नंबर आएगा तो फिर से हमारे पास सेम ही केस रहेगा, आई का रिपीटेशन वाला। तो हम क्या बोल सकते हैं? 12 है। तो 12 आ गया। फिर नेक्स्ट केस में क्या बोल सकते हैं हम? आई का नंबर आएगा तो यहाँ पे पहला आई फिक्स हो गया। अब रिपीटेशन वाला केस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? नो सर, एक ही है भाई। आई तो एक ही है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड लेटर भी आई था, तो हमें सेकंड लेटर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वहां पे ए लगाएंगे। हाँ, अब देखो जब हमें कोई रिक्वायर्ड लेटर मिल जाता है, जैसे हमें रिक्वायर्ड लेटर मिल गया, तो अब हमारा ये काम फिनिश हो गया। अब हम इस प्लेस पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अब किससे स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से स्टार्ट करेंगे। यस। अब ए से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो ए तो हमारा रिक्वायर्ड नहीं था, तो इसका मतलब अब हम जो बाकी बचे 3 प्लेस के लिए अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लेस पे क्या होगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा। नो सर, 2 नहीं होगा फैक्टोरियल। आई तो एक ही है। बिकॉज एक आई यूज हो चुका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? केवल 3 फैक्टोरियल करेंगे। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि जो लेटर यूज हो गया, अब उसको हम रिपीटेशन में नहीं काउंट करेंगे। अब हमारे पास आई के बाद ए रिक्वायर्ड में नहीं था, तो ए के बाद किसका नंबर आएगा? ए के बाद डी का नंबर आएगा। तो डी भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमें क्या चाहिए? एन चाहिए यहाँ पे। तो अगर हमारा डी भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। बताओ। हाँ यस। अब डी के बाद किसका नंबर आएगा? आई का, ठीक है। तो अगर डी के बाद आई का नंबर आएगा, तो फिर से हमारे पास 3 प्लेस बचे, 3 फैक्टोरियल होगा।
अब हमारे पास i के बाद किसका नंबर आएगा यहाँ पे, n का, और n हमारा रिक्वायर्ड था, तो इसका मतलब ये दोनों प्लेस हमारे फिक्स हो गए। अब वापस से n के बाद किसका नंबर आएगा, a का नंबर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे a रखता हूँ तो मेरे पास कितने प्लेस बचे, 2 प्लेस बचे, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 फैक्टोरियल लगेगा। बताओ ये समझ में आया, 2 फैक्टोरियल लगेगा यहाँ। यस सर। अब a रिक्वायर्ड नहीं था तो a के बाद यहाँ पे किसका प्लेस आएगा, d का प्लेस आएगा, और d रिक्वायर्ड में था, तो इसका मतलब हमारे पहले 3 लेटर ये फिक्स में हो गए। अब d के बाद फिर से जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, a का आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे a फिल करूंगा तो यहाँ पे मेरे को i फिल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये a की नंबर हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट नंबर बनेगा, जब इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे i आएगा, तो यहाँ पे एक नंबर ये बनेगा। तो अब इस प्लेस पे ये नंबर बनेंगे। अब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 12 यहाँ पे कितना हो गया, 24, और ये कितना हो गया, 24 और 6 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42, 42 और 4 कितना हो गया, 46 नंबर पे आ रहा है ये। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो। हाँ सर सही है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो तो बताओ इसका आंसर क्या है। अब हमारे पास 5 चिल्ड्रन है बेसिकली, उन्हें हमें अरेंज करना है। तो पहला केस क्या है कि कोई 2 लोग हैं जो हमेशा एक साथ होने चाहिए, ठीक है, मतलब उनमें इतनी दोस्ती है कि वो अलग नहीं बैठे। तो बताओ टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सर पहला वाला केस वाइज, केस क्या केस, देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, जब कोई 2 लोग हैं जो एक साथ आने चाहिए ऑलवेज, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन को किस तरीके से सोल्व करोगे आप। सर दो एक साथ, मतलब 2 एक ही होंगे, एक साथ होंगे कंसेक्यूटिव। एक साथ बोलने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई दोस्त है तो वो कहीं भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं कहीं भी उनको लाइन से अरेंज करके बैठाया जा रहा है, मान लो कोई क्लास है, तो उन दोनों को जहां पे भी बैठना है वो हमेशा एक साथ बैठ, उनको अलग अलग नहीं बैठा सकते 5 लोगों में से। ऐसा नहीं कि पहले को फर्स्ट पे बैठा दो और दूसरे को हम 4th पे बैठा दें, तो वो अलग अलग होंगे, वो कंजिकेटिव ही होंगे। होते हैं ना कुछ लोग कि भाई अगर हम जहाँ भी, तो इस तरह का केस है, तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, जो सीधे साधे लोग हैं सबसे पहले उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो और जो रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, ठीक है, उन्हें एक डब्बे में बंद कर दो। जब भी रेस्ट्रिक्टेड वाला केस आए उन्हें एक डब्बे में पैक कर दो। तो मान लो हमारे पास 5 लोग थे, उनमें से कोई 2 लोग हैं ए एंड बी, उन्हें एक डब्बे में पैक कर दो, ठीक है। और बचे जो कितने लोग बचे, सी डी और ई, ये 3 डिफरेंट लोग और बचे। yes. अब इस डब्बे को एक क्वांटिटी मानो, ठीक है। अब इस डब्बे को 2 लोग के जैसे काउंट मत करो, अब इसे एक ही काउंट करो। तो अब टोटल इनके अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं बताओ अभी। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये डब्बा जहां भी जाएगा इनके इन बिटवीन, ये डब्बा आपस में अरेंज हो सकता है। यस। इंटरनल अरेंजमेंट वो कितना हो सकता है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। भाई ये अपने पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं ना, बिकॉज ये रहेंगे तो टुगेदर।
तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 दैट इज 48। समझ में आई बात? Yes. चलो अब दूसरा वाला पार्ट सोल्व करने को ट्राई करो। अब इन दोनों लोगों को कभी साथ नहीं बैठने देना। अब टीचर ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। होता है ना कई बार क्लास में कोई ज्यादा बात कर रहा है तो उन्हें अलग अलग बैठा दिया जाता है। तो अब यही Yes. कहानी होगी। तो अब बताओ ये वाला अरेंजमेंट कैसे किया जाए? तो सर टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर दो जब दोनों एक साथ है हर टाइम। टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर दो जब दोनों एक साथ थे। चलो अगर हम ये ट्राई करें तो टोटल अरेंजमेंट कितने थे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 120। और माइनस कितना करना है? 48। तो बताओ कितना आया? 72। Yes. चलो इसको करने का एक सिंपल तरीका है। जब भी कुछ इस तरह का केस हो तो हमें क्या करना है, जैसे ये वाला काम किया था ऐसे हमें क्या करना है, जिनको प्रॉब्लम है उन्हें अलग रखो और जो सीधे साधे लोग हैं उन्हें अलग रखो। सबसे पहले जो सीधे साधे लोग थे उन्हें बैठा दो। इन्हें बैठाने के कितने तरीके होंगे बताओ? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो हमने इन्हें बैठा दिया मान लो सी डी और 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनके बीच में कुछ प्लेस क्रिएट होंगे। Yes. अगर इन प्लेस पे इन बचे हुए लोगों को बैठा दिया जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Yes, sir. तो बताओ वो कितने तरीके होंगे? तो 4P2। 4P2 बिकॉज हमारे पास 4 प्लेस है और 2 चीजों को अरेंज करना है तो हम लिख सकते हैं 4P। तो इसे सोल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? थ्री फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 6, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 12। 12 इंटू 6 कितना आया? 72। देखो सेम आंसर आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। तो ये तरीका ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस समटाइम्स। समझ में आई बात? एक मिनट फिर से समझाना कि 3 फैक्टोरियल किया फिर ये जगह कैसे बच गई? देखो सबसे पहले हमने 3 लोगों को बैठाया Yes, sir. जो सीधे साधे थे, जिनकी कोई डिमांड नहीं थी। तो उनको बैठाने के कितने तरीके थे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। अब हमने क्या किया, इनके बीच में जो है उन बंदों को इंसर्ट किया, ठीक है। तो उनके बीच में अगर इंसर्ट किया जाए तो ऐसे कितने प्लेस है ये जहां पे इंसर्ट किया जा सकता है? 4। 4। तो हमें 4 में से कोई अरेंज करना है तो 4P2 कर दिया, Yes. ठीक है। Yes. अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो। ये शायद आपने कभी किया होगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्या है क्वेश्चन पहले? Yes. तो बताओ कौन सा वर्ड होगा 49? हमें क्या करना है, परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड अगेन, ठीक है। उन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और हमें बताना है कि 49th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। तो पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते हैं। तो दोनों ए आएंगे पहले, फिर क्या आएगा? जी और आई में कौन पहले आएगा बताओ? सर जी फिर
जी, फिर आई और लास्ट में एन आएगा। तो सबसे पहले हम ए से सीरीज करेंगे स्टार्ट। तो ये 4 बचे तो सीधे कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, दैट इज 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 वर्ड हो गए। तो सर NAAGI है क्या? नागिग होगा शायद, आई थिंक आंसर। हाँ सर वही। उसके बाद अगर हम देखें ए के बाद किसका प्लेस आएगा, जी का प्लेस आएगा। यस। तो जी से जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि अब ए रिपीट होगा। तो कितने बचे, 12 बचे। तो अभी तक हमारे पास 36 वर्ड बन गए। तो इसमें देखो तरीका क्या है, जब हम इस प्लेस के पास पहुंचना स्टार्ट हो, हमें तब तक वर्ड बनाना है, तब जाके हमें रुकना है। पहुंचने के लिए हमारे पास आई से स्टार्ट होंगे। तो आई से भी हमारे पास यही रहेगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल रहेगा या नहीं रहेगा बताओ। यस। तो यहाँ से 12। अब हमारे पास टोटल यहाँ तक कितना बन गया, 48 वर्ड बन गया। यस। अब हमें वर्ड बनाना है आई के बाद। तो आई के बाद जो नंबर आया वो किसका आया, एन का। तो पहला आया एन। एन के बाद अब ऑब्वियस सी बात है दोनों ए आएंगे पहले, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। तो ये वर्ड बनेगा जो 49 प्लेस पे। नेक्स्ट। यस। समझ में आ रही है क्वेश्चन। यस सर। तो ये ट्राई करो। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो हमारे पास 3 मैथमेटिक्स की बुक है, हिस्ट्री की कितनी है, 4 है, केमिस्ट्री की हमारे पास 3 है, और बायोलॉजी की जो बुक्स है हमारे पास 2 है। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि अरेंजमेंट हमें इस तरीके से करना है जो सेम सब्जेक्ट की बुक है वो हमेशा एक साथ रहे। तो इसका मतलब हर किसी को अब डब्बे में ही रखना है, इसको एक डब्बे में रखना है, इसको एक में। पहले तो ये डब्बे अरेंज करने पड़ेंगे, फिर इसका इंटरनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। हाँ यस। पहले तो जिनको एक साथ रखना होता है पहले उनको डब्बे में पैक किया जाता है, तो इनमें तो सबको एक साथ ही रखना है। तो इसका मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है उनको पहले डब्बे में पैक कर दो। तो कितने डब्बे बने अब, 4। तो पहला हो गया हमारे पास 4 फैक्टोरियल। अब इनको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, इंटरनल अरेंजमेंट, इसको 4 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल, 2 अब हम फैक्टोरियल। यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं जो 3 बुक्स है ना मैथ्स की, वो डिफरेंट बुक्स है पर है सब्जेक्ट मैथ्स की। अब अगर सेम होती तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो फिर अलाइक होती तो हमें अरेंजमेंट नहीं पता चलता ना। यस। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल वेट, अगर वो अलाइक होती, अगर मान लो 3 मैथ्स की बुक है, मान लो तीनों ही एनसीईआरटी होती 12th की, ठीक है, तो हम उनको एक जैसा मानते थे, फिर हम उनको 3 फैक्टोरियल करके डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे हम उन्हें डिफरेंट लेके चलते, ठीक है। यस। ये क्वेश्चन पढ़ो।
हमारे पास 10 क्वेश्चन है, हमें एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट ए एंड बी। 6 क्वेश्चन पार्ट ए में है and 7 in part B. In how many ways a student can choose 10 questions? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? हाँ यस, चूज करना। हाँ, तो इसमें हमें सिलेक्शन करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा, और n चीजों में से r को सिलेक्ट करने के तरीके को बोलते हैं हम NCR, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है NCR को एक्सपेंड करें तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, यही होता है। यस सर। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन? देखो हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है हमारे पास वो कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। पार्ट बी के अंदर 7 क्वेश्चन है, और हमें टोटल जो सेलेक्ट करने हैं वो 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, पर 4 हर किसी पार्ट से आना चाहिए, एटलीस्ट 4 होना ही चाहिए। तो हम किस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं भाई? हम क्या कर सकते हैं, देखो पहला 4 यहाँ से ले, मान लो ये ए है ये बी है, अगर 4 यहाँ से लिया जाए तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, केस 1। जब यहाँ से अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ से भी 5 लेना पड़ेगा, सेकेंड आई केस, थिंक आंसर 266 है शायद। ठीक है। और जब थर्ड यहाँ पे हम 6 लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो बताओ इसके अलावा कोई और केस बनेगा? नो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसे अब कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 6C4 इंटू यहाँ पे था 7C6। अब इनके बीच में प्लस साइन क्यों लगा बताओ? सर डिफरेंट केसेस है ना। हाँ, और वाला चीज है ना ये, मतलब उसी काम को करने का एक और दूसरा तरीका, ठीक है, एडिशन वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हमारे पास 6C5 7C5 प्लस यहाँ पे हो गया 6C6 और 7C, ये टोटल वेट हो गई। यही केस बनाए हमने। इसी को सोल्व किया होगा ना, तो कितना आंसर आया था? सर 266 आया शायद। 266। चलो वेरीफाई करें। तो 6C2 की वैल्यू कितनी होगी? इसको 6C2 लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 7, ये हो गया 6, ये हो गया 7C2, तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 7C3, तो 7 6 5, ये हो गया 3 2 1। तो यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 3 आ गया, यहाँ से ये 3 आ गया, तो ये आ गया 15 और 7, तो ये कितना हो गया? 105 आ गया पहला। यस। और यहाँ पे कितना आ गया? 126। 126, और यहाँ पे बचा 35, ये बचा। यस। अब इनको ऐड कर लेते तो ये कितना हो गया? 5 और 6 11, 11 और 5 16, ये हो गया 5 और कैरी 1 कितना हो गया? 6, यस। और फिर कितना बचा हमारे पास? 266 आ रहा है ना। यस।
ठीक है, सही। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर ये वाला समझ नहीं आया। देखो पहला केस है ए से बी जाना, फिर बी से सी जाना, ठीक है। अब ए से बी जाने के कितने रूट है? 3 रूट है। जैसे मान लो ए 4 है तो 4 बना देते हैं, ठीक है। ए से बी जाने के 4 और बी टू सी जाने के कितने? 3 है। यस। तो मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या कह रहा है, एक मैन है जो ट्रेवल कर रहा है ए टू सी, बट होके कहां से जाना है उसे? हमेशा बी से होके जाना है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ना, बी आर बी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दिया है कि जो रूट वो यूज करेगा उस रूट से वो वापस नहीं आना चाहता। यही लिखा है ना, इफ ही डज नॉट वांट टू यूज ए बस रूट मोर देन वंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने यूज किया है पहले, अब वो उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आते वक्त वो डिफरेंट रूट से आए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस राउंड ट्रिप में कितने होंगे, यही तो बताना है। यस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम उसको ए से सी पहुंचाते हैं। ए से सी पहुंचने के तरीके कितने बताओ? पहले हम ए टू सी ले जाते हैं उसको, तो यहां से कितने थे? 4 तरीके, और फिर कितने थे? 3 तरीके, यस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वापस सी से ए आएंगे, लेकिन वापस सी से ए आएंगे तो जैसे मान लो उसने कोई भी रूट लिया होगा, जैसे मान लो उसने ये वाला रूट लिया होगा, ठीक है। तो वो एक ही तो वे होगा जो उसमें से हटेगा। हाँ यस। भाई यहाँ पे कितनी चॉइस बचेगी अब इधर वापस आने के लिए? 2 चॉइस बचेगी, ठीक है। ये 2 चॉइस ही बचेगी ना, ये तो हट गई जो यूज हो चुकी है। और यहाँ पे कितनी बचेगी? 3 बचेगी। यस। भाई काम कब फिनिश होगा? जब वो वापस ए पे आएगा, ठीक है। तो अभी काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा। समझ में आया? हाँ। ये वाला जो केस है ये हमने ऐसे क्यों किया, और फिर C2 A वापस जा रहा है, तो उसका काम क्या है? पहले यहाँ से यहाँ, तो देखो अब हमारा टास्क क्या हुआ, हमारा टास्क कुछ ऐसा हुआ, पहले A से हम B लेंगे, ठीक है, फिर B से C लेंगे, फिर हम उसे C से B वापस लाए, और फिर हम B से A वापस लाए, तब जाके हमारा ये एक राउंड ट्रिप हुआ। तो पहला जो अगर हम काम करें A से B जाने का, उसको करने के कितने तरीके हुए? 4 तरीके हुए, ठीक है। फिर B से C जाने वाला काम करने के कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। अब हमें B से C जाना है, तो एक तरीका हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा बताओ? यस। तो इसके लिए हमारे पास 2 चॉइस बची, और फिर इसके लिए कितनी बची थी? तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 3, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 × 6, तो 72 वेज हो गए। ये कोई ऑप्शन थोड़ी ना कि वो ऐसा कर लेगा कि
कंटिन्यूएशन में उसे फिनिश करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा 72। समझ में आया ये क्वेश्चन प्रॉपरली? हाँ यस। चलो ये वाला ट्राई करो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कमेटी फॉर्म करनी है जिस कमेटी के अंदर 3 मैन हो और 2 वुमेन हो, ठीक है। और हमें सेलेक्ट कितने से करना है, 5 मैन और नहीं 7 मैन और 5 वुमेन से सिलेक्ट करना है। तो जो टोटल हमारे पास गिवन है, मैन है 7 और वुमेन है हमारे पास 5, और कमेटी में हमें चाहिए मैन चाहिए 3 और वुमेन चाहिए हमें 2 एग्जैक्टली। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। तो 7 में से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 7C3 इंटू 5 में से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 5C2। तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 10, 5C, तो ये कट गया 6, तो ये हो गया बेसिकली 350 आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला। समझ में आया? हाँ यस। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? यस। तो क्या आंसर होगा बताओ? सर बी है आंसर 1956। कैसे किया? सर केस ये है कि एक फ्लैग लिया, फिर 2 फ्लैग, फिर 3 फ्लैग, फिर 4 फ्लैग, फिर 5, फिर 6, और फिर ऐड कर दिया केसेस। अच्छा, तो उनको अरेंज नहीं किया, फ्लैग है तो डिफरेंट फ्लैग है ना। हाँ सर, वो जो वो वाला होता है ना, सबसे पहला वाला। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक फ्लैग लिया, तो 6C1 इंटू 1 फैक्टोरियल। यस। फिर क्या किया होगा, 2 फ्लैग लिए, 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। यस। यही किया होगा ना। फिर 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनको अरेंज भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिफरेंट कलर के फ्लैग है तो उनमें एक डिफरेंट सिग्नल देगा। तो ऐसे नेक्स्ट क्या होगा, 6C4 4 फैक्टोरियल, फिर होगा 6C5 5 फैक्टोरियल, और लास्ट होगा 6C6 6 फैक्टोरियल। ये टोटल केस। हाँ यही सर, क्या वो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मेथड ऑफ काउंटिंग जो होता है ना।
अच्छा, वो यूज करते हैं और फिर ऐड करते तो समझ में आए? हैं। यस। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हमें क्या है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। उनके 4 पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमें ये बताना है नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर, तो पहले क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके होंगे बताओ? सर 4। 4, और सेकेंड को भी 4, थर्ड को। तो टोटल नंबर ऑफ आंसर एग्जामिनेशन कितने हो गए हमारे पास? 4 टू की पावर 3, दैट इज 64 वेज हो टोटल। 63 होगा ना, कि एक क्या? ही मतलब एक ही सारे सही होंगे। 63 होना चाहिए फिर। हाँ, अब इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस होगी भाई, जो करेक्ट सीक्वेंस होगी वो तो एक ही सीक्वेंस होगी, वन वे टू करेक्ट ऑल। वो एक ही तरीका होगा ना जिसमें ये सारे सही होंगे, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ तो गलती होंगी। अगर मैं ये एक करेक्ट वाला तरीका इन टोटल तरीकों में से माइनस कर देता हूं, तो 64 माइनस 1 दैट इज 63 वेज होंगे जिसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा होगी, ठीक है। तो कितना तरीका हो गया हमारे पास? ऑप्शन डी। समझ में आया? हाँ यस। चलो ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया हो पहले, कि मान लो हमारे पास कोई एक रूम है, ठीक है, उसके अंदर मान लो 10 लाइट स्विच है, ठीक है। आपके पास 10 लाइट ऑन करने के लिए बटन है, ऑन और ऑफ वाले, जिन पे ऑन और ऑफ। तो आप कितने तरीके से उस रूम के अंदर लाइट कर सकते हो? ये क्वेश्चन किया है कभी? सर रिपीट करना है। एक रूम है हमारे पास, उसके अंदर मान लो 10 बल्ब है, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग 10 स्विच है जिसके अंदर ऑन और ऑफ है। करने का बस 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो 10 बल्ब है हमारे पास, तो और ये इन स्विच को यूज करते हुए 10 डिफरेंट डिफरेंट स्विच है, तो हम कितने तरीके से उस रूम के अंदर लाइट ऑन कर सकते हैं या लाइट कर सकते तो सर हर का तो 2 ही चॉइसेस होंगे, मतलब वेज होगा हर बल्ब का, ऑन या ऑफ। तो 2 की पार्ट है ना होगा क्या? हैं? -1, बिकॉज जब सारे स्विच ऑफ पोजीशन पे होंगे तो लाइट नहीं होगी। अच्छा ओके सर। भाई ये हुआ ना, देखो, ये बल्ब 1 मान लो, B1, ऐसे ये B2 मान लो, ये 10th बल्ब। तो इसको ऑन और ऑफ हमारे पास 2 चॉइस है, हर के लिए 2 चॉइस है, तो टोटल चॉइस जो होगी वो होगी 2 की पावर 10 इनको ऑपरेट करने की। बस इस ऑपरेशन के अंदर एक ऑपरेशन ऐसा होगा जिसमें ये भी ऑफ पे है, ये भी ऑफ पे है, ये सारे ऑफ पे हैं, तो इसका मतलब इस केस में लाइट नहीं है, बाकी कोई ना कोई ऑन होगा तो लाइट है रूम में, और हमारी कंडीशन है रूम के अंदर लाइट होनी चाहिए, तो ये केस एक माइनस करना पड़ेगा। यस। समझ में आई बात? तो ये सिमिलर क्वेश्चन है,
आइडियोलॉजी पे फॉर्म है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ये तो इजी है, रैंक निकालना है, ठीक है, ये तो कर ही लोगे। यस सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये अब इसका कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, हमें पॉइंट्स दिए हैं एक प्लेन के अंदर, ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स हैं। अब उन 18 पॉइंट में नो 3 आर कोलिनियर मींस ऑन सेम लाइन एक्सेप्ट 5, उनमें से 5 ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म जॉइनिंग दिस पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताओ करना क्या है। हाँ सर। तो ट्राई करो। देखो हमारे पास टोटल 18 पॉइंट है, मान लो 1 2 3 ऐसे करते करते 18 पॉइंट, बट इन 18 में जो 5 पॉइंट है वो एक ही लाइन पे है। तो मान लो कुछ ऐसे, ये यहाँ पे 5 पॉइंट है, ये एक ही लाइन पे है। तो अगर मैं इस सिचुएशन को अलग करके बनाना चाहूँ तो 5 तो कुछ एक लाइन पे है, बाकी कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। 13 ऐसे कुछ डिफरेंट पॉइंट है, ये 13 है, ये 5 है। तो ये सिनेरियो है बेसिकली। हाँ यस। अब हमें एक लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, लाइन कैसे बनेगी। भाई लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। हाँ, तो 2 पॉइंट को सिंपली ज्वाइन कर दो, चाहे उसको इधर से ज्वाइन करो चाहे इधर से ज्वाइन करो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल 18 पॉइंट थे, तो हमने 18 पॉइंट में से दो दो के सिलेक्शन कर लिए। तो जितने दो दो के सिलेक्शन होंगे उतनी लाइन पॉसिबल है। ये बात समझ में आई। भाई जो दो दो का सिलेक्शन बना उनका एक लाइन बनेगा। हाँ यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब इन दोनों पॉइंट का सिलेक्शन हो गया, मान लो इसका और इसका, तो लाइन यही बनी। फिर मान लो इसका और इसका सिलेक्शन हो गया तो भी एक ही लाइन बनी। भाई स्ट्रेट लाइन तो एक ही काउंट होगी ना, कोई लाइन सेगमेंट की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो इस केस में दिक्कत आ रही है कि हम जब भी इन 5 पॉइंट में से सेलेक्ट करें तो वो सेम लाइन बन रही है। तो इसका मतलब ये रिपीटेशन के कारण बार बार काउंट हो गया। यस। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, इन 5 में से जो सिलेक्शन हुए उन्हें माइनस कर दूं और एक प्लस कर दूं, क्योंकि ये एक लाइन तो काउंट होगी। हाँ यस सर। समझ में आई ये बात। यस। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज को। अगर मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन है, इन ए प्लेन, ठीक है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट है, out of which m are collinear, then total number of straight line, तो वो सिंपली कितनी होगी, देखो टोटल n थे तो सबसे पहले n से 2 करो, जो कोलिनियर है उसे माइनस कर दो m से 2 और प्लस 1 कर दो, ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इसका जनरलाइज है। समझ में आया। यस। अब इसी केस में पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। सर NC3। स्ट्रेट लाइन की जगह ट्रायंगल पूछा जाता इसी केस में, तो क्या फॉर्मूला बनता। सर थोड़ा सा ऊपर करना, नोट करना।
लिख लिया? यस। अब ट्रायंगल की बात करें तो देखो सबसे पहले हमें NC3 करना पड़ेगा और फिर माइनस MC3 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ +1 नहीं करना। क्यों? देखो भाई जो 5 पॉइंट या जो भी पॉइंट इस लाइन पे है ये N पॉइंट, और टोटल जो है हमारे पास ये M पॉइंट है और टोटल N पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास किसी 3 के सिलेक्शन पे तो कोई एक भी ट्रायंगल मिलेगा इन पॉइंट से? नहीं मिलेगा। तो हमें जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में एक स्ट्रेट लाइन तो मिल रही थी तो हमने 1 ऐड किया, बट यहाँ पे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आई बात? यस। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है। अब मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये घर से कर लेना। मैं एक और चीज करा देता हूँ आपको, डायगोनल्स वाली चीज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो हमारे पास कोई n साइडेड पॉलीगन है। n साइडेड पॉलीगन का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉलीगन है जैसे मान लो A1 A2 ऐसे उसके n वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये nth वर्टेक्स है, डैश वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर इसके टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे जाए तो कितने होंगे? बताओ। डायगोनल कब बनेगा, कैसे डायगोनल फॉर्म होगा? तो सर NC2। देखो हम भाई कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे हमारे पास लाइन आएंगी पहले, तो NC2, लेकिन उन लाइन में से हमें ये साइड तो माइनस करनी पड़ेगी, ये साइड तो डायगोनल काउंट नहीं हो सकती। तो जितनी साइड से पॉलीगन की वो माइनस कर दो, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल काउंट। समझ में आई बात? हाँ यस। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन था वो करते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलो ट्राई करो डायगोनल। हमें 44 डायगोनल दे रखे हैं, इस बार हमें साइड बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें वैल्यू दी हुई है NC2 माइनस n दैट इज इक्वल टू 44, यही गिवन है। यस। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो NC2 को कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस n दैट इज इक्वल टू 44। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आ गया n स्क्वायर माइनस n दैट इज माइनस 2n इज इक्वल टू 88। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये n तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट फाइंड करो। तो 11 इंटू 8 हो जाएगा सबका आंसर 11n प्लस 8n। तो यहाँ पे आ गया n माइनस 11, यहाँ पे आ गया हमारे पास n प्लस 8। तो माइनस में तो साइड कभी हो नहीं सकती, तो यहाँ से ओनली आंसर बचेगा n इक्वल टू 11। समझ में आया? यस। ये डायगोनल वाला, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन भी था।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, ये नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, ये ट्राई करना, ठीक है। एक मिनट सर देखो। नोट कर लिया? एक मिनट। हो गया? यस सर हो गया। चलो तो आज हम यही एंड करते हैं पीएमसी का डिस्कशन, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम वेक्टर और 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेक्टर 3D वैसे तो कंप्लीट चैप्टर 12th में है, पर बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।